Dear students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are again continuing our chapter, that is chapter 9, areas of parallelogram and triangles. We will study about areas of figures lying on the same base and between the same parallels. Today we will do exercise 9.2, question 2 to 6. I have told you about this topic that if there is a parallelogram and there is a triangle on the same base and between the same parallel lines, then this triangle area is half of the area of parallelogram. Also, we can do one more thing. If a parallelogram on the same base and between the same parallels, then area of one parallelogram is equal to area of second parallelogram. ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा और दोनों पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल होगा. सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन. यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट. ओके बेटा, यू कैन हैव अ You can have the screenshot by pausing the video. Okay, now we will begin the exercise. You just understand it very carefully. Okay, so let us have a look on the question. E, F, G, H are the midpoints of the side. E, F, G, H are the midpoints of the sides of a parallelogram. It is very easy. Let us draw the diagram. E, F, G, H are the midpoints. Let it be A, B, C, D. A, B, C, D is a parallelogram. E, F, G, H the midpoints. E, F, G, and H are the midpoints. You have to prove that E, F, G, H, E, F, G, H का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का हाफ है. तो what I have done, I just joined it. Now let us talk about lower triangle. In triangle we talk about this one. So what do you see? Can you see that? Can you see that this triangle area of H, E, F is half of area of A, B, F, G? Tell me, is this parallel to this? Because it's a parallelogram. And so are they lying on the same base? Yes. Are they between the same parallel? Yes. This triangle will have the area, half of the area of this much. Fine. This is number 1. Now we can use the same criteria in the above also. We can use the same criteria in the upper triangle also. So what you can write? Area of HFG. HFG. This area is equal to half of HDCF. So that will be your number 2. Now what is the third step? Add 1 and 2. जब आपने इसमें इसको ऐड किया तो बन जाएगा EFGH और यहाँ बन जाएगा ABCD. Understand? In this manner you have to do. So what we have done, I am writing again. Area of HEF is equal to half of area of HFBA. Similarly, area of HGF equal half of area of HFCD. This is 1, this is 2. Add 1 and 2.
ऐड करके लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा EFGH और हाफ कॉमन लेके ये बन जाएगा ABCD। नेक्स्ट P and Q आर द 2 पॉइंट्स, ये यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, आर द 2 पॉइंट्स ऑन DC ओके एंड AD। ABCD पैरेललोग्राम है, आपको बताना है APB, दिस वन APB का एरिया BQC के एरिया के इक्वल बताना है, दिस इज BQC। ठीक है, तो कैसे बताएंगे बेटा, सबसे पहले ये ले लो BQC। Now tell me, can I write that area of BQC is equal to half of area of ABCD because it is a parallelogram, तो ये पैरेलल लाइंस हो गए और सेम बेस पर भी हो गए। Similarly, I can write that area of APB is equal to half of ABCD, अगेन द सेम बेस, ये सेम बेस हो गया और पैरेलल लाइंस के बिटवीन भी हो गए। इन दोनों को ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड इक्वल, सो देयर लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल, सो APB इज इक्वल टू BQC। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन सी दैट BQC इज इक्वल टू APB। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। In the figure, P is a point in the interior of a parallelogram ABCD. Show that APB, ये देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, APB प्लस PCD ये वाला और ये इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD। तो आप इसे ज्वाइन कर लो, इसे EF बना लो। अब ये बहुत इजी हो गया, आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू, ट्रायंगल 1 क्या हो गया APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABEF नंबर 1। नंबर 2 ले लो नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या हो गया PDC, इसका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ DCEF। ऊपर वाला ट्रायंगल इसका हाफ हो गया, नीचे ट्रायंगल इसका हाफ हो गया। अब दोनों को आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है, APB आ जाएगा, यहाँ से PCD, हाफ कॉमन लोगे, ऊपर वाला पैरेललोग्राम और नीचे वाला पैरेललोग्राम प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा ABCD। प्रूफ हो जाएगा, रफ नोटबुक लेकर ट्राई करना। और अगर सेकंड वाला प्रूफ करना है तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो APD सेम बेस सेम पैरेलल लाइन, और इधर से ये वाला लोगे तो BC और ये सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस, तो बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही सेकंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आता है 5th, PQRS ABRS are the two parallelograms on the same X is a point on BR, X यहाँ पर पॉइंट है। आपको दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल बताना है, तो है एरिया इक्वल, भाई PQRS कौन से बेस पर है, RS पर, और जो ABRS है वो भी किस पर है, RS पर। So they have same areas because both lie on the same base RS and between the same parallel lines। अब देखो ये जो AXS है ये किस पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है, एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS। ठीक है, लेकिन ABRS तो किसके इक्वल है, PQRS के, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे PQRS, तो सेकंड भी प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम का तो एरिया सेम है, थ्योरम का यूज़ करके। देन क्वेश्चन नंबर 6, ए फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। एक फार्मर है और PQRS फॉर्म का उसका फील्ड है। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS, उसने RS पर एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, एंड ज्वाइन टू द पॉइंट्स P एंड Q, और PQ से ज्वाइन कर दिया। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में फील्ड डिवाइडेड है, तो 3 1 2 3। व्हाट आर द स्लोप्स ऑफ दीज पार्ट्स, स्लोप्स कैसे हैं, दे लाई बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन।
द फार्मर वॉन्ट टू सो वीट, फार्मर जो है वो वीट उगाना चाहते हैं और पल्स इक्वल पोर्शन में। तो आपको बताना है कि इक्वल पोर्शन कैसे बनेगा। तो देखो, क्या आप ये लिख सकते हो दैट ए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर एस? यस, बाय थ्योरम। अब ये 2 इधर आके न्यूमरेटर में चला जाएगा, हो गया। अब पी क्यू आर एस में कितने रीजन बन गए? 1 2 3, तो यहाँ लिख दो ए पी क्यू पी एस ए आर क्यू। लेकिन पी क्यू आर एस की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ ए पी क्यू, यहाँ डबल ऑफ ए पी क्यू लिख दिया। ये ए पी क्यू इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 2 ए पी क्यू में से 1 ए पी क्यू गया तो ए पी क्यू बचा। अब ये रीजन बच गया, यानी कि या तो पल्स यहाँ उगा लो और वीट यहाँ उगा लो, इन 2 रीजन में। ठीक है, कैसे किया? ये वाला रीजन लिया, ये वाला लिया, ए पी क्यू हाफ ऑफ पी क्यू आर एस हो गया, 2 इधर गया, डबल ऑफ ए पी क्यू हो गया, पी क्यू आर एस 1 2 3 कर दिया। ठीक है, और पी क्यू आर एस की वैल्यू पुट कर दी, माइनस कर दिया और सॉल्व हो गया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।